आज का क्लास है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट हमारा जियोलॉजी है। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्लास्टिक सेडिमेंट्स। बेसिकली these sediments are the sediments from which sedimentary rocks are formed. There are two types of sediments, clastic sediments and non-clastic sediments. The sediments from which sedimentary rocks are formed that are to be divided into clastic sediments and non-clastic sediments. Today we will discuss regarding the clastic sediments. What are clastic sediments? Clastic sediments are those sediments which are classified in three groups: radiaceous type of rocks, arenaceous types of rocks, and argillaceous type of rocks. These are different types of rocks, small rocks, which are categorized in clastic sediments. So when we talk regarding radiaceous rocks, these are formed by accumulation of bigger rock fragments such as gravels, pebbles, boulders. If such rocks have rounded grains, the rock is then called a conglomerate. If these types of rocks, rhodaceous type of rocks, contain angular type of grains, then the rock is called brachia. Similarly, when we go to the second group, that is arenaceous type of rocks, these are those rocks which are composed almost entirely sand grains. These are arenaceous type of rocks which are a type of clastic sediments from which sedimentary rocks are formed. These arenaceous group are composed almost entirely of sand grains. Examples are when individual grains, these sand grains are rounded in shape, then that the rock which is formed from such type of group is known as sandstone. And if the arenaceous type of rock is formed by the angular grains, the grains are angular from which such group is formed, and these clastic sediments form these type of sediments rocks. Those are known as grit, which contain angular grains. So third group is argillaceous type of rocks. These are made up of very fine grained sediments. These argillaceous group contain very fine grained sediments, and the example for this type of group is shale and mudstone. They are typically argillaceous rocks which are composed of clay-sized sediments. Next is example is arkose. When appreciable quantity of feldspar are present in a sandstone, it is a type of sandstone. Arkose is basically a type of sandstone in which there is an appreciable quantity of feldspar, plagioclase feldspar, that type present, that type of sandstone is known as arkose. Basically, some sandstones contain plagioclase feldspar in an appreciable quantity, then those sandstones are known as arkose. Similarly, when sandstones contain appreciable quantity of clay, here contains feldspar. When sandstones contain appreciable quantity of clay as well as angular quartz, quartz भी होगा इसमें, gray quartz grains, such rock is called greywacke. The greywacke is a type. In other words, we can say greywacke is a type of sandstone which contain appreciable quantity of clay as well as angular quartz grains. So that is why it is called the name greywacke. So if we try to understand in a way, in a simple way,
अगर हम इस तरह से बात करेंगे कि क्लास्टिक सेडिमेंट्स क्या होते हैं, क्लास्टिक सेडिमेंट्स ऐसे सेडिमेंट्स है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, या जिस तरह से हम बात करते हैं पेबल्स है, ग्रेवल्स है, इस कैटेगरी में जो सेडिमेंट्स की कैटेगरी में हम स्टार्ट करते हैं बोल्डर्स से लेके लोअर लेवल तक, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स या सैंड या फाइन क्ले की बात करते हैं हम यहाँ। दीज आर नोन एज सेडिमेंट्स। द सेडिमेंट्स फ्रॉम विच सेडिमेंट्री रॉक्स और फॉर्म, ऐसे सेडिमेंट्स छोटे छोटे जिनसे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स वजूद में आते हैं, उनको हमने डिवाइड किया है, तकसीम किया है दो तरह के सेडिमेंट्स में, क्लास्टिक सेडिमेंट्स और दूसरा है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। पहले हम बात करेंगे क्लास्टिक सेडिमेंट्स के बारे में। व्हाट आर क्लास्टिक सेडिमेंट्स? ये क्लास्टिक सेडिमेंट्स जानने के लिए हमने इन क्लास्टिक सेडिमेंट्स को तीन ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक ग्रुप है क्लास्टिक सेडिमेंट्स का रोडेशियस रॉक्स, दूसरा ग्रुप है छोटे छोटे टाइप के एरिनेशियस रॉक्स, और उससे छोटा है आर्जिलेशियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो पहला बड़ा साइज है उसको रोडेशियस रॉक्स में, उससे छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स है उनको हम एरिनेशियस रॉक्स में तकसीम किया है, और उनसे सबसे जो छोटे छोटे हैं साइज में उनको आर्जिलेशियस टाइप ऑफ रॉक्स में हमने तकसीम किया है। दीज आर ऑल द क्लास्टिक सेडिमेंट्स। रोडेशियस रॉक्स जो ग्रुप है जिसको हमने क्लास्टिक सेडिमेंट्स के अंडर क्लासिफाई किया है, जो सबसे पहले है उसको हम रोडेशियस रॉक्स कहते हैं। एक ग्रुप है रॉक्स का जिनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ये क्लास्टिक सेडिमेंट्स है। ये जो है रोडेशियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये फॉर्म बन जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड, ये वजूद में आते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ बिगर रॉक फ्रैगमेंट्स। जब बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर क्या उनमें से उनकी एग्जाम्पल क्या है जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि ये रोडेशियस रॉक्स है? ग्रेवल्स, पेबल्स, बोल्डर्स। जो बोल्डर्स आपने देखे होंगे बड़े बड़े नालों में, जो हमारे आसपास कहीं पहाड़ों के नीचे नाले होते हैं, गोल गोल टाइप के बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। और पेबल्स उससे छोटे साइज के पत्थर जो होते हैं, और उससे जब ग्रेवल उससे ज़्यादा छोटे जो होते हैं, इनको हम बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स कहते हैं। ये बोल्डर्स, पेबल्स और ग्रेवल्स के साइज के ये सेडिमेंट्स होते हैं। इन सेडिमेंट्स, इनकी वजह से इफ दे आर राउंडेड ग्रेन्स, देन हम उसको हम कांग्लोमेरेट, अगर ये राउंडेड होंगे तो कांग्लोमेरेट, अगर इस तरह के होंगे, एंगुलर होंगे, एंगुलर टाइप ऑफ सेडिमेंट्स होंगे, फिर उनसे जो रॉक बनेगी उस रॉक को हम ब्रैक्शिया कहते हैं। दैट मीन्स इसमें एंगुलर होते हैं और कांग्लोमेरेट में राउंडेड होते हैं। इसी तरह एरिनेशियस रॉक्स होते हैं। ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो कंपोज ऑलमोस्ट दे कंटेन और कंपोज्ड ऑफ सैंड ग्रेन्स। इसमें सिर्फ सैंड ग्रेन्स, दैट मीन्स सैंडस्टोन सैंड ग्रेन से बन जाते हैं। ये जो सैंड ग्रेन्स होते हैं, इनसे जो राग बनती है उसको हम सैंडस्टोन कहते हैं। इसमें भी एक खास चीज होती है, इसमें अगर सैंड के दाने गोल गोल के होंगे तो उसको हम सैंडस्टोन कहते हैं। अगर ग्रीन्स जो सेडिमेंट ग्रीन्स जो होंगे, अगर ये एंगुलर होंगे तो इसको हम ग्रिट कहते हैं। उससे जो स्टोन बनते हैं उसको ग्रिट कहते हैं। इसी तरह आर्जिलेशियस टाइप्स रॉक्स, दीज आर ऑफ मेड फाइन ग्रेन्ड, ये जो मेड अप ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स। जिस तरह से हम डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जब आपने मार्केट में जो क्ले मटेरियल देखा होगा, या जिस तरह पार्टिकल्स, जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं उसके लिए जो आटा होता है, जितना वो मुलायम और बहुत ही छोटे छोटे उसमें दाने होते हैं, उन दानों को अगर हम सेडिमेंट्स में चेंज करेंगे या पत्थर जैसे उसी जैसे कंपेयर करेंगे सेडिमेंट्स के, वो जो सेडिमेंट्स आर्जिलेशियस रॉक टाइप ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं, वो उसी तरह जिस तरह आटे के छोटे छोटे दाने होते हैं, इसी तरह आर्जिलेशियस के जो फाइन ग्रेन्ड मटेरियल होता है, जस्ट द विच आर इक्वल इन साइज, जस्ट लाइक आवर
flour, जो हमारा आटा होता है उसी के साइज के आर्जिलेशियस टाइप ऑफ ग्रेन्स होते हैं जिनको हम फाइन ग्रेन्स कहते हैं। उनसे जो जिस तरह हम मड स्टोन हमने देखा, आपने देखा होगा, शेल जो देखा होगा आपने, ऐसे टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो इसी ग्रुप से, आर्जिलेशियस टाइप ऑफ रॉक ग्रुप जो होते हैं, मटेरियल जो होता है वेरी फाइन ग्रेन्ड होता है, just like the dust particles. So this was all about the clastic sedimentous, which are the three types of which are classified in three types: rhodaceous, arenaceous, and argillaceous. These all the three types of sedimentous are those which from which we uh, form the sediment rock. In other words, these three types of sedimentous, clastic sedimentous, are responsible for forming the sedimentary rocks. This was all about the clastic sediments.